relax. So, Anand, Chidanand. Very Then I can't express. सब डर खत्म. I love water. I love sea. I love everything. In water, out water. I'm very happy. है कहीं सब गायब. स्ट्रेस से डील करना ही नहीं, उसका गुब्बारा है, उसको फोड़ देना, बस खत्म. Like I was flying and 5 elements were following me. I was ahead of them. And This is the experience of spirit, because it is the spirit which flies, and 5 elements are behind the spirit. And I was so light, and for some moments I could feel that I don't have any body now, and I was like a feather, and I literally could not feel any weight of my body, and I was like, I was again transcended into my body again, like I was out of my body and then I entered again. So it was like revisiting one of my dreams before so many years, and I had completely forgotten it. What is the dream? The dream was like this only, that I was flying, I was just a flame. This is not a dream, this is a reality. Yeah. Reality, what is the reality? Whenever you see the dream where you are flying, what is flying? It is your spirit. So that is the reality. And where is the stress right now? And for some moments, I could see the fields of lotus. Lotus. Pink lotus, and there were innumerous lotus, and I was flying upon those lotus, and then I could see one very big lotus, and that was all. Very good. Any stress right now? No stress. Gone. Bust. I just felt that I came out from a bad dream, like a princess gets up from a fairy tale, and bad dream is gone, and some morning, a good morning. Very good. Good morning. आपको कैसा फील हो रहा है? I would want to add one more thing. Yes. That surprisingly, I never think about Osho. I have read him, I have listened to him. But just now, in between, I could see 3 faces, one by one, overlapping. The first face was of Osho, and he was smiling at me. And just beard was there, and then I could see Jesus Christ, which I never go to church or like that. And then incidentally I happened to see Lord Adinath idol, which is in Palitana upstairs on the hills. These 3 faces I could see. You might have some connection with him. Done dynamic meditation for many times. The kind of experience I had today was not similar with the previous dynamic ones. I was sure that I was not into my body, and I was in between the constant vibrations, humming. It was a constant humming, which I could not escape. It was everywhere around it. That humming is the Anhat Naam. That is the Omkar. That is Omkar. Yes. It was so much. The whole universe is singing that. Yeah, and it was everywhere around, and I'm sure it was not of. I was not here. I'm pretty sure of it. It was constantly gazing me, quizzing me. Have to be total. But if there is a feeling coming from inner, then you follow the intuition. But yeah, that sound was very addictive. It will completely drown you in the bliss. Yeah, I was into it like. It is like the ocean of bliss. Yeah, I didn't want to come back, but it was your command that made me come back.
पिक्चर्स दिखाई देने लगे, अलग अलग जैसे वीडियो क्लिप्स होते हैं उस तरह के। कोई रिलेवेंस नहीं था उसमें, कोई कनेक्शन भी नहीं था। मैंने इतना एफर्ट किया सिर्फ कि मैंने साक्षी भाव से उनको देखता गया। उसमें अलग अलग लोग आए, अलग अलग चित्र आए, कुछ ऐसा भी है, कुछ एक्सीडेंट हो रहा था, कुछ एक ऐसी आवाज़ आ रही थी कि कोई हेलीकॉप्टर सा उड़ रहा है और कोई पहाड़ी में जाकर टकरा रहा है। 2-3 नाम आए, मिस्टर मर्चेंट करके आया, कोई पेखा, कोई लड़की थी, अलग अलग पिक्चर्स थे, कोई कनेक्शन नहीं था, ऐसे ये सब आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज है मे भी, क्योंकि उसमें जितने भी दृश्य मैंने देखे उसमें से एक भी दृश्य, मैं बहुत घुमा फिरा हूँ, मगर कोई भी दृश्य ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी इस जगह में देखा हो। कुछ अलग अलग विचित्र थे, मगर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी उनकी, और एक के बाद दूसरा जो आता था बिल्कुल अलग से आता था। आत्मा के संपर्क में आए, स्ट्रेस का नाम ही नहीं। आगे बोलिए। और कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहे? नमस्कार। कदाच एम लागे हिंदी में बोलना, गुजराती में बोलने का मन कर रहा है। नहीं, गुजराती में बोलिए, सब आप बहुत ऑथेंटिक फील कर रहे हैं, मैं समझ जाऊँ। तो મજાની શહેર મજા પ્રવાસીઓ ઘણા વર્ષો પહેલા એક આવું દ્રશ્ય મેં જોયું હતું કે રણપ્રદેશમાં એક, જો કે મેં જોયું નથી પણ એવું મને ઘણી વાર જ્યારે પણ હું ઊંઘમાં હોઉં અને જ્યારે જાગૃત અવસ્થામાં આવવાની તૈયારી હોય ત્યારે મને આ દ્રશ્ય વારંવાર દેખાય છે। રણપ્રદેશનો વિસ્તાર છે અને એક મજાનું કંઈક મંદિર જેવું મસ્જિદ જેવું દેખાય છે ગુંબજવાળું, અને હું એ વખતમાં કદાચ મને એવું લાગે છે કે એ જે દ્રશ્ય જોયો મેં એ કોઈ લશ્કરી પોશાક હોય એવું મને લાગ્યું, અને ત્યાં 27/5/1857નો એક અંક મને દેખાણો, 1857 27/5 27 फीट में। तो उस समय मेरे ऊपर अटैक हुआ, ऐसा मुझे दृश्य लगा। फिर क्या हुआ तो मुझे कुछ मालूम नहीं, अभी उसके बारे में संशोधन करना जरूरी लगता है। ये अमेजिंग बात यह है कि अभी हमने कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन का नहीं, फिर भी प्रोसेस शुरू नहीं किया, क्योंकि मन में जो हम ऐसे इमेज लेके बैठे हैं, जो लेकिन आप रिलैक्स हो गए, तो ऑटोमेटिक वहाँ सबकॉन्शियस से वो इमेज रिलीज हो रही है। रिलैक्स तो हो गया, क्योंकि जब उसमें आए ही है तो कोई भी विचार छोड़ के हम पूरा डिवोट करके इधर बैठे थे, तो वो सुहाना सफर रहा मेरा। आपको अगर बहुत शांति हो गई है, अभी मजा आया। आपको जो करंट लाइफ है हाँ, उससे आपको ऐसा लगता है कि आपका 1857 की क्रांति में आपका कुछ रोल रहा होगा? हाँ, ऐसा लगता है कि अभी भी मेरा कुछ रोल बाकी है। कुछ रोल बाकी है, वो तो आगे की बात हो गई, लेकिन पहले जो वहाँ था वो एक लश्करी दृश्य था, मेरा भी यूनिफॉर्म था कोई, जो लश्कर का उस जमाने में शायद होगा कोई। और 27/5/1857 मुझे ऐसा लगता है एकदम क्रांति के आसपास की डेट है। प्लासी युद्ध, हाँ? प्लासी नहीं 1857 मैं आपको बता दूं कि विप्लव था, और मैं क्या है कि मैं भी अपनी आज़ादी का प्रथम नागरिक हूँ। 15 अगस्त 1947 में मेरा जन्म हुआ, मुझे उसका प्रमाण पत्र भी मिला है भारत सरकार की ओर से कि आज़ादी का प्रथम नागरिक मैं हूँ। रात को 12 बजे आज़ादी मिली हमको, उसी दिन मेरा जन्म हुआ है, और हमारे गांव की ओर से, जिला की ओर से हमारा रोमान भी हुआ था। तो ये मेरा सदनसीब है कि मेरे आने से हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, और उसी हिसाब से आपकी शायद बहुत गहरी इच्छा रही होगी उस जन्म में, राइट, अब जब मैं आऊंगा भारत में तो आजाद भारत में हूँ, इसके लिए आप उस दिन आए। कला मेरी जो नींद का जो ताल्लुक है शायद कहाँ वहाँ पे हो, ऐसा मुझे अभी महसूस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक रिलैक्सेशन अंदर से फील हो रहा है।
बहुत मजा बहुत अच्छा। थैंक यू। कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, वो हमेशा रेगुलर मेडिटेशन करती है, तो वो अपने अनुभव बताते रहते हैं कि उसको गुलाब की खुशबू आ रही है, सुखड़ की खुशबू आ रही है। तो मैं भी प्रयत्न करता हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है तो संभवतः हर रोज 10-15 मिनट तो मैं ट्राई करता हूँ मेडिटेशन, मगर आज कभी तक मुझे खुशबू नहीं आई, मगर अभी जो हम लेटे थे अभी वो खुशबू मुझे आ रही थी बीच में, कि सुखड़ की खुशबू आ रही है। किसकी खुशबू? सुखड़ की उसकी खुशबू जैसे फैल रही है चारों तरफ, और वो खुशबू मुझे महसूस हो रही है, ऐसा महसूस हुआ। ये वो खुशबू है जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, यानी हमारे अंदर जो नाभि में से खुशबू निकलती है, ये आपकी आत्मा की खुशबू है। और ऐसे मैंने अभ्यास बहुत किया, योग के बारे में भी काफ़ी अभ्यास किया है। पूरा योग दर्शन समाधिपात के सभी सूत्र में अभी बोल सकता हूँ, 55 सूत्र जो है उसके बारे में जानकारी, मगर प्रैक्टिकल में बहुत कम कर पाता हूँ। और दूसरा है कि जब सो रहे थे तभी और जो नाच रहे थे उसमें जितने भी मेरे लाइफ में जिसका योगदान है, वैसे जितने देवी देवता को मैं मानता हूँ सभी के फोटो ऑटोमेटिक मेरे सामने आ रहे थे। और जिसका मैं मेरे गुरुजी का मैं ध्यान कर रहा हूँ तो वो भी आके उन्होंने एकदम पाक से आया और मेरे पर सर पे हाथ रखा। बहुत ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था। बिल्कुल वो सच है, मेरे बिल्कुल सच है, उनका हाथ आपके ऊपर आया ही। और उसके बाद जितने भी मेरे लाइफ में जितने भी लोगों के साथ अनबन रही, उनकी भी वो लोग भी मेरे सामने हैं, उनके साथ मैंने जैसे क्षमा मांगी, ऐसा हुआ भाव। और जिन्होंने मेरे साथ जिनका योगदान है अच्छा, उनको मैंने थैंक यू बोला, ऐसा मैंने महसूस। ब्लेसिंग्स मिल रहे थे और मैंने भी सबको ब्लेसिंग्स दिए, इधर जो कक्ष में स्टाफ लोग सब लोग जो भी याद आए, बहुत आनंद आया। धन्यवाद। मैंने ऐसा दृश्य देखा, मैं उनको पूछ रहा था कि ये परफ्यूम छाटा था या गुलाल किया था, कुछ लगाया आपने? और मैंने जो दृश्य देखा एंड में जो डांस करते थे तो सफ़ेद बाल वाला और एकदम बड़े दाढ़ी दिए हुए रजनीश जी के जैसा दिख रहा था भाई, कपड़े बड़े सोने के जैसे उसको आगे पहने थे और सब मस्ती में डांस कर रहे थे। मेरी आंखें तो बंद थी, मैं भी उसमें बीच में डांस कर रहा था। तो एक तो धूप की मेरे को सुनाई स्मेल आई, मैंने बोला मेरे को लगा कि आपने यहाँ किया होगा ऐसा। तो मैं वही जैसे उसी में चलता गया। बाद में मोगरे की, चंपा और मोगरे की स्मेल आई एकदम, और वो स्मेल लेते 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 उनके साथ में जैसे उनकी आंखें बंद थी और हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद दे रहे थे, वो देख के फिर मैं भी वो धुन में जैसा पानी बहता है वैसा बहता है। पता नहीं फिर क्या हुआ, पर मुझे ऐसा लगा, अभी मैं उनको पूछ रहा था कि कोई परफ्यूम छाटा था कि नहीं। बहुत खूबसूरत था। मेरे करने से नहीं होता है। और मुझे महसूस हुआ कि ओशो यहाँ थे, मुझे भी ये महसूस हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे? और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी, वो सब किसी भी दिन भर साल में करते रहते हैं। मेरे यहाँ बागुगढ़ बाजू साइड में गांव है, वहाँ ओशो आश्रम है। पुणे वाले वो स्वामी जी आते हैं, उसी दिन बताए। आप कुछ कहना चाहते हैं? जब दूसरी बार ट्रांस में जाने लगी तो अलग रास्ता था, लेकिन मुझे इतना ठान लिया था कि मुझे उसी पुलिस गर्ल वाली ही ज़िंदगी में जाना है। लेकिन मेरे सामने एक एकदम अलग वातावरण था। पहले तो एक मोनेस्ट्री थी, इतनी बड़ी मोनेस्ट्री थी और इसमें इतने सारे लामास थे
और उसमें एक लेडी लामा थी। जो लेडी लामा थी वो एकदम एक गोल्डन बहुत बड़ी आइडल थी। उसके नीचे जो मेरे गुरु थे वो बैठे थे। मैंने उसको आज तक कभी भी नहीं देखा है, मैंने उनको पहचाना भी नहीं। लेकिन उसके जो नीचे की 2 मेन चेयर्स होती है, उसी में से एक लेफ्ट वाली चेयर में मैं बैठी थी और हमारे सामने हजारों लामा बैठे हुए थे। जो सामने बैठे थे उसको भी मैं नहीं पहचानती हूँ, लेकिन वो दोनों मुझे क्लियर दिखाई दिए। फिर वो उसने प्रीचिस देना शुरू किया और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में वो जो हमारे गुरु लामा थे इतनी अच्छी उपदेश दे रहे थे कि बात नहीं। और हमें इतने सबको इतने रोंगटे खड़े हो गए थे कि जैसे बस यही तो एक एक्सपीरियंस है जो हम हरदम लेना चाहते थे। और उसने इतना इतना अच्छा उपदेश दिया, मुझे कोई वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन वो जो फीलिंग्स थी कंटेंटमेंट की कि बस आज सब मिल गए, वो एक फीलिंग्स आई। और जब फिर वो बहुत देर तक बोले, फिर उसने मेरे सामने देखा और बोला कि अभी आप बोलो। फिर मैंने बोलना शुरू किया। मैंने भी बहुत 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 देर तक सबको उपदेश दिया और फिर जब मैंने पूरा किया तो वो एक ही सेंटेंस बोले कि बस अब आज से आप उपदेश मत देना, आपको जो देना था सब दे दिया, अभी आज से आप अंदर उतरो और अभी उसी यात्रा में आपको जाना है। तो वो एंड था मेरा। जब आपने बोला कि आपकी मृत्यु देखिए, तो पता नहीं मुझे मृत्यु नहीं दिखी और उसके बजाय मुझे 1-2 ऐसे ग्लिम्स दिखे। एक तो दलाई लामा दिखाई दिए जिसका मैंने कभी भी सोच में भी नहीं देखा है। और दूसरा मैं 12-13 साल की, अगेन मैं लामा हूँ और मैं 12-13 साल की हूँ और मरून रोब पहना है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बस इतना ये। और एक ऐसा सीन दिखाई दिया जो साल दिखाई दी 858, जब आपने बोला और पीछे जाते हैं तब 858 की ये समय है और एक बहुत बड़ा टावर दिखा दिया। इतना बड़ा टावर था वो की बात नहीं, और मैं इसके नीचे से जा रही बस। तो आपने पूछा कि उससे कांटेक्ट करने का तरीका? हाँ, वो मैंने पूछा और उसने इतनी अच्छी तरह से मुझे जवाब दिया कि जब कभी भी आपको चाहो, आज का जो मेरा घर है और मेरा बेडरूम है उसकी बाहर एक बालकनी है। बालकनी का जो मंदिर वाला एक हमारे सामने एक दिगंबर जैन मंदिर है, तो वो जो मंदिर वाला कोना है वहाँ जाकर ये मेरी एक रिंग दिखाई जो मैंने अभी पहनी है। उसमें एक माणिक है, तो वो माणिक पर ऐसा 2-3 बार ऐसा प्रेस करना, मैं आ जाऊँ। पता नहीं, वो रूबी को आप टच करना, मैं आ जाऊँ, ऐसा है। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे?